जितने भी एकत्रित हुए शाम को आप सभी को सुप्रभात। सर अभी विदेश में अमेरिका में अभी मॉर्निंग सुबह चल रहा है, इसलिए आज सर आपको सब लोग को सुप्रभात कह रहे हैं। और सब लोग जहाँ पे एकत्रित हुए सभी को जय मसीह की। And Archana, that is your daughter. Who is that? That's your daughter? अर्चना सिस्टर के साथ जो बैठे हैं वो आपकी बेटी है क्या? Wonderful, beautiful, beautiful daughter like a mummy. एकदम प्यारी बेटी है, एकदम मम्मी पे गए हैं, मम्मी के समान। Very nice, Sundari, Sundari daughter. एकदम प्यारी बेटी। Here use the correct translations. सुंदर बेटी, एकदम सुंदर बेटी दी है आपको। Okay, which class she study? कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वो? अर्चना Eighth standard. Wow, wow. What is your dream to become? आपकी इच्छा? Doctor. She speaks English. Yeah. Doctor. Wow, wonderful. Pediatric, cardiology, or what? Family practice? Surgeon. Surgeon. Wow, man. Wow. When we get old, we have to come to Jodhpur. Are you in Jodhpur? Where are you? What's your? Lucknow. Lucknow. Wow. Very good. Which church you are part of there? Dr. D.B. Thapa. Okay. Yeah. Hey, one of my friends, she's an IS officer, the mining department chief secretary, Dr. Roshan, and from Trivandrum. She is the UP cadre. She works there. She was all over in UP as the collector, many places. Now she is in Lucknow. So next time when I come, I'd love to see you guys. And what is your name? Anushka. Very good, Anushka. And पूरा नाम क्या है? Surname? Anushka Ranjan. Ranjan. Anushka Ranjan. Ranjan. Do you have a WhatsApp number? Yeah. What is your WhatsApp number? I will WhatsApp you. 90260 90260 159 20. You are such a smart young lady. Thank you. And study well. And how many brothers and sisters you have? One brother, one elder brother. What is his name? Aditya Ranjan. Aditya? Yeah. That's wonderful. Thank you for joining. Really appreciate. So I will WhatsApp you. So let's stay in touch. Yeah, let's pray. Father, we thank you. Thank you for this beautiful Saturday evenings, Saturday morning here. We give you praise. Translate, Nikhil. खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए समय के लिए। Every day is a gift from you. प्रभु हर एक दिन आपकी तरफ से एक दान है प्रभु हमारे लिए। And we are safe under your wings, and we thank you for the protection and the preservation. प्रभु हमेशा हम तेरे पंखों के आड़ में हमेशा सुरक्षित रहते हैं प्रभु। तेरी सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। I just heard a friend of mine and his wife was injured. They were injured by a road accident in Rajasthan near Udaipur somewhere, a Malayali family. प्रभु जैसे कि मुझे सुनने में आया कि मेरा एक मित्र जो उदयपुर में है वो उनके पत्नी के साथ उनका एक एक्सीडेंट हुआ है खुदा, रोड एक्सीडेंट। Major accident. एक बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई उनके साथ। So Lord, we thank you for the safety and thank you Lord for the blessings we have. Help us be thankful to you. खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने उनको सुरक्षित रखा प्रभु, उनको संभाले रखा इस बात के लिए। I'm very sad this morning. My friend and the man who baptized me, man who gave me the first Bible, and today morning and a couple of hours before in Kerala, Tiruvalla, and GFA hospital, he died. Dr. T.G. Koshi, a close friend of mine, 88 years old. प्रभु मुझे आज बड़ी दुख की बात है कि जिन्होंने मुझे पहले बपतिस्मा दिया था, जिन्होंने मुझे पहला बाइबल दिया था कई साल पहले, GFA के एक हॉस्पिटल में केरल में
कुछ समय पहले वो एडमिट हुए थे और आज उनकी मृत्यु हो गई, तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है प्रभु। So many people are in pain and agony and sorrows because of so many things, Father. प्रभु कई लोग कई तरह की परेशानियों में, दर्द में और कई तरह के तकलीफों में है प्रभु। We thank you for the peace and the healing you have given. पर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि आपने हमारे जीवन में वो छुटकारा, वो शांति हमारे जीवन में दिया है खुदा। Now speak to us through chapter 6, Lord. You reward your people. Sometimes the world may not recognize what the good thing you do, but you reward our faithful work. प्रभु हम प्रार्थना करते कि अब छठे अध्याय से आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, तू हमारे जितने भी लोग हैं जब इसको सुनेंगे प्रभु, तो हमें हम सभी को तो प्रभु उसके अनुसार हमारे जीवन में उस वचनों को दे जो लोगों के सामने, दुनिया के सामने जो प्रकट नहीं होते, उन वचनों को हमारे बीच में तू प्रकट कर खुदा। You heard the prayer of Mordecai. You heard the prayer of Esther. You answered, Lord, through the compassion, the kindness of the king, and Mordecai is honored in chapter 6. प्रभु तूने मोर्देकाई की प्रार्थना को सुना, तूने एस्तेर की प्रार्थना को सुना प्रभु, और तूने राजा के मन को बदला प्रभु, और तूने हम छठे अध्याय में देखते कि आपने मोर्देकाई को सम्मान दिया है प्रभु। Help us to be so excited and learn this great chapter this evening. प्रभु आज शाम के समय ये हम बड़े उत्साहित है कि आज छठे अध्याय को हम सीखने जा रहे, पढ़ने जा रहे खुदा। Be with us, Lord. We give you glory, honor, and praise. प्रभु तो हमारे संगो साथ रहे और सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं खुदा। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 I want everybody carefully and ready to study 14 verses, chapter 6. मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बड़े ध्यान पूर्वक छठे अध्याय के 14वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। And God honors you. God honors you before your enemies. God prepares a table. We know that God prepares a table before our enemies. वचन में कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को शत्रु के सामने आदर करता है, उसका आदर करता है, और वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर अपने शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। God remembers and he rewards. Look at two are remember. God remembers and he rewards. यहाँ पर वचन में यहाँ पर दो चीजें हम छठे अध्याय में पढ़ते हैं। एक तो परमेश्वर हमें याद करता है और वो हमें सम्मानित करता है। So I'm so glad, young people, you're writing the notes. It's very, very important so that we can go back and remember. For me, every time when I listen a sermon, throughout the day, I think about that sermon. How did the preacher go through that text? What did he say? Throughout the day, I remember. That is the way we think about the sermon, that we spend an hour, we learn. Now, throughout the day or throughout the week, we must, review it, digest it, apply in our lives. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप जितने जवान हैं, जो मैं ये जो प्रचार करता हूँ उसको आप लिख लीजिए, इसको आप सीखिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में इसको लिखना बहुत जरूरी है। जब भी कभी भी मैं प्रचार सुनता हूँ तो मैं हमेशा उस प्रचार को लिखता हूँ। उसको लिखने के बाद साथ ही साथ मैं उस प्रचार के विषय में हम पूरे दिन उस दिन में पूरा सोचता रहता हूँ कि प्रचारक ने क्या प्रचार किया। उसके बाद पूरे हफ्ते भर उसके विषय में, उस जो प्रचार किया उसके विषय में मैं सोचता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि हमें उसे पूरी तरह से हमारे जीवन में उसको अपनाना चाहिए, उसे पचाना चाहिए हमारे आत्मिक जीवन में। That's very good. And please read it. Let's look. I'm going to give you four principles to learn. 4 principles. Okay, 4 principles to learn, and then I have a conclusion. 1, 2, 3, and 3 major principles. Then conclusion. Okay, आज 4 बातों के बारे में हम देखेंगे। 3 सिद्धांत आपके सामने रखा जाएगा, और उसके बाद जो चौथा है वो है समापन। तो आज हम यहाँ पर 3 सिद्धांतों के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। God honors you before your enemies. That's a big title. आज का जो शीर्षक है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसका शीर्षक ये है कि परमेश्वर अपने शत्रुओं के सामने हमारा आदर करता है। Hey, make sure Sini put this message on the YouTube, Facebook,
Let those who wanted to come and hear, they can learn it. Be a maximum blessing of this, this evening meeting. Okay. Sir, Facebook Live is on, sir. Oh, okay. Very good. Okay. Very good. Sir, annotation on that. Okay, I will do that. I always forget it. Thank you. And let's read 1 to 4, Nikhil. Yeah. आज मैं आप लोग के सामने छठा अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ना चाहता हूँ। उसमें इस प्रकार से लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शयर्श के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्देकाई ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्देकाई की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल करते थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्देकाई के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से कर। Thank you. Excellent, clear reading. Very good reading. The first point, people forget. People forget what we do, good thing we do for them. But God who understands everything, God does not forget his people. पहला बिंदु यह है कि कई बार लोग हमने जो अच्छे काम किए हैं, उस कामों को लोग कई बार भूल जाते हैं, पर हमारा जो परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर हमें कभी भूलता नहीं। Amen. You know, sometimes a mother forgets her children, but our Heavenly Father never forget his children, never abandon his children. कई बार हमारी जो दुनिया की जो माँ है, वो हमें भूल जाएगी, हमें छोड़ देगी, पर हमारा जो स्वर्गीय पिता है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। Verse 1, chapter 6, that night the king could not sleep. You see, वचन 1 में इस प्रकार से लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई। Who is behind that? God, the Almighty God, the king. He has a good bed, he has security people, and he has everything, the best bed in the world, but he could not sleep. राजा के पास सोने के लिए अच्छी गद्दी थी, उसके पास अच्छा पलंग था, सब कुछ अच्छा था, उसके चारों तरफ पहरेदार भी थे, पर वो सो नहीं पाया क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का हाथ था। King could not sleep. वहां पर लिख रखा है कि राजा को नींद नहीं आई। So what did he do? He called his security people. He ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read it to him. Please, he brought his attendants. Please come and read the annals, everything what happened in his reign. राजा बिल्कुल सो नहीं पाया, इस वजह से वो अपने द्वारपाल को बुलाता है और द्वारपाल को बुलाकर कहता है कि इतिहास की जो पुस्तक है उसको पढ़ा जाए, और कहता है कि उनसे कहता है कि क्या अच्छे काम किए लोगों को, उनके बारे में वो बताने को उनसे कहता है। And the book of the Chronicles. और वो इतिहास की जो पुस्तक है उसको लाने के लिए कहता है। Verse 2, it was found recorded that Mordecai had exposed Bigdana and Teresh, the security people, their conspiracy. 2 of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. That we know that these guys made a conspiracy to kill him. That was recorded in the annals, in the book of Chronicles. और वचन 2 में हम पढ़ते हैं कि वहां पर जब वो इतिहास की पुस्तक को पढ़ा जाता है, तो वहां पर जो 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था बिक्ताना और तेरेश, इन दोनों ने योजना बनाई थी, उन्होंने षड्यंत्र बनाया था कि जो राजा है शरेश राजा है, उसको किस तरह से मार डालना है, और ये बातें मोर्देकाई ने प्रकट किया था, उस विषय में वहां पर इतिहास की पुस्तक में वर्णित किया गया है। Like Indira Gandhi was killed by his 2 security men, like here Bigdana and Teresh. इंदिरा गांधी जी को जिस प्रकार से उनके 2 सिक्योरिटी लोगों ने मार दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर शरेश राजा को भी उनके 2 जो द्वारपाल है
सुरक्षा कर्मी है वो उसको मार डालना चाहते थे। Verse 3, what honor and recognition has Mordecai received? This the king asked. That's a big question. Did we honor this man Mordecai for saving my life? तो राजा, हम तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्देकाई की क्या प्रतिष्ठा बढ़ाई की गई? तो राजा के सेवक उनकी सेवा में टहल करते थे। उन्होंने उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। उत्तर दिया, what was the उत्तर? Nothing has been done for him. His attendants answered. Wow. Now verse 4. और King said, who is in the court? Now Haman had just entered the outer court of the palace to speak to the king about impaling Mordecai on the pole he had set for him. He just, listen, you know this enemy Haman, very bad guy. He wanted to destroy Mordecai and his people. So he just entered with an idea to tell the king, and the pole is ready, let us destroy, let us kill Mordecai. और आप हामान को बहुत अच्छे से जानते हो। हामान एक बहुत बड़ा एक दुष्ट आदमी था और वो इस्राएलियों का बहुत बड़ा शत्रु था, यहूदियों का बहुत बड़ा शत्रु था। और वचन 4 में लिखा है, जब राजा ने पूछा आंगन में कौन है, उस समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्देकाई के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। My friend, God is behind the scene, preparing the way for honoring God's people. हमेशा परमेश्वर हमारे पीछे खड़ा रहकर वो हम अपने लोगों के लिए वो रास्ते को तैयार करता है ताकि परमेश्वर के लोग का आदर हो। I want you to know God knows everything what we do. और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम जो करते हैं वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। And at some particular point, He will complete His purpose in your life. Maybe some years silent, but at a particular moment, our God will complete His purpose in your life and my life. परमेश्वर अपने समय पर आपके जीवन में अपने मकसद को पूरी करता है। और कई बार हमको लगता है परमेश्वर चुप है, पर परमेश्वर चुप नहीं है। परमेश्वर अपने समय पर हमारे जीवन में उस अपने मकसद को वो पूरा करता है। Many of you know my story. आप में से कई लोग मेरी कहानी को अच्छे से जानते हैं। And when I was 20 years old, जब मैं 20 साल का था, I was beaten up and kicked out of the home, disowned. My father said, "You are no more my son. You destroyed this home." और मेरे पिता ने, जब मैं 20 साल की उम्र में था, तो मेरे पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है क्योंकि तूने मेरे घर को नाश कर दिया है। I am the first of 8 children. और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सबसे पहला पुत्र था, बड़ा बेटा था। So I walked out of the home with the tears. मैं घर से बाहर आंसुओं के साथ घर से बाहर निकला। My all siblings, my mother, they were crying. मेरे जितने भी भाई बहन थे और मेरी जो माता थी, सब लोग रो रहे थे। I did not know where I will go, who will feed me, how will I live. But Father said, "Get out here." मुझे पता नहीं था कि मुझे कौन रखेगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, मुझे कौन खाना खिलाएगा, पर मेरे पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया धक्के मारकर। He said, "You destroyed the home, brought a bad example to other children." मुझे कहा कि तूने हमारे घर को नाश कर दिया और तू दूसरे बच्चों के लिए एक बहुत गलत उदाहरण बन गया। I had a difficult time in Trivandrum when I was studying for masters. जब मैं अपने मास्टर्स की पढ़ाई ट्रिवेंड्रम में कर रहा था, मेरी परिस्थिति बहुत ही खराब थी। Sometimes I have only one meal. कई बार दिन में मुझे सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था। I longed for one meal, one curry, 2 curries. I longed when I was living in Trivandrum as a young man, 21, 22 years old. जब मैं 20-21 साल का था, उस समय ट्रिवेंड्रम में मैं कई बार खाने के लिए मैं तड़प जाता था। कई बार मुझे खाने के लिए तरसना पड़ता था। कई बार एक टाइम के खाने के लिए मुझे बहुत तरसना पड़ता था, या 2 प्रकार की सब्जी के लिए, या एक प्रकार की कोई भी सब्जी के लिए मैं तरसता था। Those days I wished somebody would give me one new shirt. मैं उस समय मेरे दिल में एक बहुत बड़ी इच्छा होती थी कि कोई मुझे एक अच्छा एक शर्ट दे दे। Those days I wished somebody would give me 10 rupee. मैं उस समय ये इच्छा रखता था कि कोई मुझे 10 रुपए भी दे दे।
But you know, it took many years God to reward me for that obedience. पर मैं आप सब लोग जानते हैं कि मुझे काफी काफी समय लगा कि परमेश्वर अपने समय पर अपने मकसद को मेरे जीवन में उसने पूरी किया, और वो पूरी इसलिए हुई क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा। But all of you know, today God strengthened me by His grace and mercy to help thousands of young people and all over the country. और आज आप सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इतना बल दिया, इतना सामर्थ्य दिया कि जो काबिल नहीं है, जिनमें इतनी ताकत नहीं है, उन सभी को मैं आगे ले चल सकूं, उनकी सभी की मैं मदद कर सकूं। And that's why I have a dream to raise up 1 lakh young people, 1 lakh young leaders to be dynamic, to touch the world. और इस तरह से मेरे जीवन में इस तरह का एक सपना आया कि मुझे कम से कम 1 लाख जो जवान है उन्हें मुझे तैयार करना है, और काफी शक्तिशाली रूप से उनको तैयार करना है, ताकि वो दुनिया के हर एक लोगों को उनके बीच में जाकर उनको छू सके। Not just ordinary young people who loves Jesus, very sincere, they don't lie, they don't boast, humble, full of the Holy Spirit, people with the purpose and vision and transparency, that kind of Christ-like young people in this generation to touch India and the world. परमेश्वर बहुत ही असाधारण लोग को चुनता है, जो नम्र है, जो दिल से काफी अच्छे हैं और अपने जीवन में हमेशा साफ पारदर्शी जीवन जीते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि उनके द्वारा इस पीढ़ी के लोगों को सबको छू ले और उनके जीवन में परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। Nigan, you know, that's why we have the seminary, Bible colleges every state. Then we have the church-based theological program, because to raise up young leaders, faithful leaders, and for Christ's sake. इसलिए आप सब लोग जानते हैं मिशन इंडिया हर राज्य के अंदर बाइबल कॉलेज को खोलकर बहुत सारे जवानों को तैयार कर रहे हैं, ताकि वो तैयार होकर परमेश्वर के वचनों को ले जाकर इस दुनिया में जितने पीढ़ी है उस पीढ़ी के बीच में परमेश्वर के वचन को सही रीति से और शक्तिशाली रूप से परमेश्वर के वचन को बांट सके। Beloved, my point again, God knows everything, and at some particular point, and you will see God is lifting you up, and you will complete His purpose in your life and my purpose, my life. कुल मिला के बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि परमेश्वर हर चीज को जानता है, और ऐसा एक समय आएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर के मकसद को पूरा करेगा। Isaiah 49:15. Look at Isaiah. यशाया 49:15 Bible college की किताब। Seminary students, please look at Isaiah. Isaiah 49:15. मैं बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि यशाया की किताब है 49 अध्याय उसका 15वां वचन देखिएगा। Everybody need to engage. Isaiah 49. मैं आप सबसे विनती करता हूँ, सभी लोग जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 49 का 15 जरा ध्यान से पढ़िए। Sini, ask one Bible college student to read 49:15. Ask one Bible college student to read it. बाइबल कॉलेज का कोई भी एक विद्यार्थी 49 का 15 पढ़िएगा। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने And verse 15 is fine. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? It's a difficult thing. It's a difficult, but even though she may forget, that's a reality. Even though she may forget, I will not forget you. That's exclamation. You see that exclamation? My friend, this is the character of God. Even if your own father or mother forget you, abandon you, your God cannot forget you, abandon you. This is His quality because He created you for His glory. वचन 15 में लिख रखा है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। ये काफी मुश्किल बात है कि ऐसी कोई माँ होगी जो अपने बच्चे को छोड़ दे, पर यहाँ पर लिखा है कि अगर ऐसा छोड़ भी देती है माँ, तो हमारा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर का जो चरित्र है, उसका गुण ये है, क्योंकि उसने हमें रचा है, उसकी महिमा के लिए उसने हमें रचा है, तो उसका गुण ये है कि वो हमें हमारे माता पिता भी छोड़ क्यों ना दे, पर परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा।
promise you keep always in your heart. You never be discouraged. And when your mother says something bad, brother says something bad, daddy says something, uncle says something bad, remember what God says, and you will be happy. Yes, you can say, my Lord loves me, my Creator God loves me. He will never forget. Have that promise in your life. हमेशा परमेश्वर के उन वाचों को याद करें अपने जीवन में, चाहे आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन आपके खिलाफ कुछ भी क्यों ना बोले, हमेशा आप याद रखिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो वचन दिया है, वो जो वाचा आपके जीवन में बांधा, उसको याद कर कर आप हमेशा ये कहे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो मेरे जीवन में वो काम को करेगा. And let's go back to 43, Isaiah 43, look at verse 4. और यशायाह 43 वचन, उस वचन को हम पढ़ेंगे. 43 उसका चौथा वचन. And everybody underline, says, you are precious, honored in my sight because I love you. Look, underline these words. God says, Anushka, you are precious, you are honored, my sight, because I am the Creator God, I love you. वचन यशायाह 43 का 4 में इस प्रकार से लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ. ये जो वचन है, इस वचन को आप लोग रेखांकित कीजिएगा, इसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर ने अपनी अच्छी बात को कही है, इसको रेखांकित कीजिएगा. तो बहन अनुष्का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर, आप परमेश्वर की नजर में बहुत ही अनमोल है, प्रतिष्ठित है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Look at verse 7. I created you. I created George. I created you. Nikhil, verse 7. I created you for my glory. I called you by name. I formed you. I made you. See all this? Be encouraged this evening. God, the Almighty, the great God, the Creator God says, you are in this world. I formed you. I made you. I created you for my glory. वचन 7 में इस प्रकार से लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है. परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वचन को सुनने के द्वारा, इस वचन को पढ़ने के द्वारा मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको अब सृष्टि इसलिए की कि उसकी महिमा के लिए प्रभु ने हम सबको रचा है और वो हम में से हर एक को नाम से जानता है. And only God's people know this truth. The Hindus, Muslims, or others, they don't know this truth. That is why we can be victorious, because we cannot live like others. We cannot talk like others. We cannot act like others, because we have a purpose. God Almighty created us, formed us, and made us for His praise, His namesake, for His reputation, for His glory, for His purpose. हम अन्य जातियों के समान उनके वो पूरी सच्चाई को नहीं जानते हैं, पर सच्चाई हम लोग जानते हैं. काफी सही रीति से हम लोग को सच्चाई पता है. हम उनके तरह जी नहीं सकते, उनके तरह कार्य को कर नहीं सकते. जो परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है उसकी सृष्टि में, परमेश्वर ने जब हमें रचा है, तो हमें हमेशा परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए हमें आगे बढ़ना है. उसके नाम को कभी भी हमें नीचे नहीं करना है, उसके नाम को हमेशा ऊंचा कर हमें आगे बढ़ना है. And look at the Hebrews 6:10, please. Everybody look at it, please. Hebrews 6:10. Nikhil, read it. इब्रानी की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन, उसमें क्या लिखा है? इब्रानी की किताब 6वां अध्याय उसका 10वां वचन. वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो. Is that correct? Hebrews 6:10. God is not unjust. He will not forget your work and love you, and you have shown Him as you have helped His people and continue to help Him. He will never. He's not an unjust God. He will not forget. Underline. He will not forget your work. You are not doing work for Raju Thomas. You are not doing for Mission India. You are doing for God. He is not unjust. He will not forget what you do. And the appropriate time, He will exalt you. He will lift you up. हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है. जो आप काम करते हैं वो काम परमेश्वर कभी
भूलता नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आप मिशन इंडिया के लिए नहीं कर रहे हैं, आप राजू सर के लिए नहीं कर रहे हैं, पर जो आप काम कर रहे हैं वो काम आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपके कार्य को कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि वो अन्यायी नहीं है। So, my beloved, don't be lazy in your work to the Lord. Give the best. Give 100%. With all your heart, mind and soul, you love God and love His work. And He will reward you. मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप आलस ना रहे, परमेश्वर के कार्य में आप कभी भी आप पीछे ना हटे, हमेशा परमेश्वर को आप पूरा दे, 100% दे, ताकि परमेश्वर आपके कार्य को कभी भूलेगा नहीं और परमेश्वर हमारा अन्याय नहीं है, वो हमेशा आपका आदर करेगा। Now let's look at the 5 to 11. आए हम आगे देखेंगे एस्तेर की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 5 से 11। Verse 5. His attendants answered, king's attendants answered, Haman is standing in the court. Verse 5. वचन 5 में इस प्रकार से लिखा है कि हामान जो है वो आंगन में खड़ा है। And then bring him in, the king ordered. तब राजा ने कहा उसे भीतर बुलवा लाओ। Verse 6. When Haman entered, the king asked him, what should be done for the man the king delights to honor? What we must do to the man that king delights? Underline that question. Verse 6. वचन 6 में जहां पर लिखा है, जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित है। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है उस सवाल को आप रेखांकित कीजिए, उसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिए। What should be done for the man the king joyful or delights to honor? वहां पर लिख रखा है कि जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा। You understand, Haman is a full of pride, insecure man. He thought to himself, who else is going to honor? Me, I am the guy. What a prideful man. Look at now, Haman, look at next verse. Look at your Bible. Now, आगे वचन में देखिए। now Haman thought to himself, who is there that the king would rather honor than me? वचन 6 के आगे में इस प्रकार से लिखा है, हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। हामान एक बहुत बड़ा एक घमंडी व्यक्ति था, वो सोचता था कि मुझसे बढ़कर और कोई है ही नहीं, तो राजा प्रतिष्ठा जो देगा वो मेरे को ही देगा और वो किसी और को दे नहीं सकता है। Verse 6, verse 7, he answered the king, for the man the king delights to honor. 8, have them bring a royal robe. And a royal robe the king has worn, and horse the king is ridden, one with a royal crest placed on its head. Or king is giving the instruction what to do with the man that king honors. वचन 7 और 8 में इस प्रकार से लिखा है, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे। वचन 8, उसके लिए राज्य के वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके लिए सिर पर जो राज्य के मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। यहाँ पर राजा निर्देश देता है लोगों को कि ये सारे जो वस्तु है वो लेकर आए और मैं उस मनुष्य की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। So what are the 3 things, Nikhil? What are 3 things we need to do? यहाँ पर 3 चीजें हैं जो राजा मंगवाता है। वो है एक राजकीय वस्त्र जो राजा पहनता था, एक राजकीय वस्त्र, एक घोड़ा और एक मुकुट, राजकीय मुकुट चाहिए। Very good. Verse 9, then let the robe and the horse be entrusted to one of the king's most noble princes. And very important princes should do this. Let them robe the man the king delights to honor, and lead him on the horse through the city streets. Take him, put him on the horse, and take through the city streets, proclaiming before him, this is what is done for the man the king delights to honor. King gave a very clear instruction to honor this man. और राजा ने यहाँ पर एकदम साफ रीति में निर्देश दिया है कि इस व्यक्ति का आदर करना है। और वचन 9 में इस प्रकार से लिखा है, फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो
उसको वह वस्त्र पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। You know Mordecai's life, good man, good Jew, always praying, fasting, and raised up and an orphan girl and spent his life for this girl to become beautiful and even up to reach up to the king's palace to become queen. और आप जानते हैं मोर्देकाई एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, एक अच्छा यहूदी था जो हमेशा प्रार्थना करता था, जो हमेशा उपवास रखता था, और उसने एक अनाथ बच्ची का पाला और उसको बड़ा किया और उसने राजा के राज्य में उसको लेकर आया ताकि वो राजा की रानी बन सके। You know, Nikhil, he did not do any bad things to anybody, only did good things, but somebody wanted to destroy this good man. But God is living, God is watching, he is now honoring this man. आप सब लोग जानते हैं कि मोर्देकाई काफी अच्छा व्यक्ति था, उसने हमेशा भलाई किया है पर उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और इस मोर्देकाई के जीवन में ऐसा एक व्यक्ति था जो उसको नाश करना चाहता था, पर हमारा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग से सब देख रहा था और उसने मोर्देकाई को प्रतिष्ठित किया। Can all of us raise hands and give a praise to God? He is a good God. We praise, hallelujah. क्या अपने हाथों को उठाकर हम उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उस परमेश्वर की स्तुति करें कि परमेश्वर किस प्रकार से हम सभी का आदर करता है। Because he is a good God. He is a good God. He honors us at the right time. Good God. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. You are a good God. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। You worship, Lord, we worship you. Oh, you care about us. You lift us, oh God, we worship you. You are a good God. You watch us. Everything we do, we say, any good things we do, you know it, Lord. We thank you. Bless your people right now, I pray in the name of Jesus. Amen. 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 Look at the verse 10 now. वचन 10 में क्या लिखा है? Get once, the king commanded Haman. Get one. Immediately bring Haman. और वचन 10 में इस प्रकार से लिखा है कि राजा ने हामान से कहा, फूर्ति करके अपने कहने से के अनुसार उस वस्त्र और उसके घोड़े को लेकर उन यहूदी के मोर्देकाई से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। Get the robe, the horse, and do just as you have suggested for Mordecai the Jew, who sits at the king gate. Do not neglect anything you have recommended. He told Haman, Haman, you said all this, do all this for this man Mordecai the Jew who is sitting at the gate. और राजा ने हामान से कहा कि तुमने जो सुझाव दिया है उस सुझाव में से सब कुछ, सारी वस्तु उसको देना, उसमें से एक भी छूटने ना पाए, और जो मोर्देकाई जो फाटक पर बैठता है राजभवन के फाटक पर, उनको ये वस्त्र और ये घोड़ा पहनाना देना। Wow, the table turned now against Haman, and for God is honoring Mordecai. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेज है वो हामान के खिलाफ हो जाता है और यहाँ पर परमेश्वर मोर्देकाई को आदर करता है। Verse 11. वचन 11। So Haman got the robe and the horse. He robed Mordecai and led him on a horseback through the city streets. Look at the guy, Haman, and he has to obey. He has to do all this, and on a horseback through the cities, proclaiming before him, this is what done for the man the king delights to honor. यहाँ पर हामान को देखिए, हामान किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को यहाँ पर राजा की आज्ञा को मानता है। वहां पर 11वें वचन में लिखा है, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्देकाई को पहनाया और उससे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया। Because Haman has to obey it, because king ordered. There is no excuse. He cannot escape from this. He has to honor. यहाँ पर हामान ने राजा का जो निर्देश है, उसकी आज्ञा है, उसको मानना पड़ा। उसे यहाँ पर बचने का कोई उपाय नहीं है, तो जो राजा ने उसे आज्ञा दी वही चीज को हामान को यहाँ पर करना पड़ा। If we are sitting on the horse now, अब यहाँ पर कौन घोड़े पर बैठा है? मोर्देकाई। Mordecai. Verse 12. वचन 12। Afterward, Mordecai returned to the king's gate, but Haman rushed home
with his head covered in grief. Underline, and they had underlined his head covered in grief, and told Zeresh, his wife, and all his friends everything that had happened to him. और वचन 12 में लिखा है, तब मोर्देकाई तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए जट अपने घर को गया। यहाँ पर ये जो सिर ढपे हुए जट अपने घर को गया, उसको रेखांकित कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। और 13वां वचन में लिखा है, हामान ने अपनी पत्नी जरेश और अपने सभी मित्रों से सब कुछ उस पर जो बीता था वर्णन किया। I want you to again emphasize this point. He has a particular point in time when he will act and give you your reward. मैं यहाँ पर फिर से जोर देना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने निर्धारित समय पर वो अपने कार्य को करता है और वो हमें प्रतिष्ठित करता है। I remember when I was living in Trivandrum, attending one church, a PMG group, a church, maybe Nigel, you heard about PMG group in Trivandrum. जब मैं 20 साल का था, उस त्रिवेंद्रम में जब मैं रहता था, मुझे आज भी याद है, वहां पर मैं एक चर्च में जाता था। उस चर्च का नाम, उस कलीसिया का नाम था PMG group. They didn't have so-called pastors. All are engineers. They worked for Vikram Sarabhai as ISRO in Trivandrum. और वो लोग सिर्फ नाम के लिए पास्टर्स नहीं थे, वो लोग काफी पढ़े लिखे पास्टर्स थे। वो लोग विक्रम साराभाई नाम की जो संस्था है, उसमें वो लोग बड़े बड़े कार्य को करते थे। वो लोग एक तरह के विज्ञान के रूप में वो लोग काम करते थे वहां पर। And there was a revival among these engineers. और इन जो बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, इनके बीच में एक बहुत बड़ी जागृति आई। So they started a church. तो उन्होंने एक कलीसिया को शुरू किया। When I was in Trivandrum, I attended that church. और जब मैं त्रिवेंद्रम में रहता था, तो मैं इस कलीसिया में जाता था। These are the early days of that church. और मेरा जो है वो शुरुआत में, जब मेरी शुरुआत है उस कलीसिया से शुरू हुई। I saw those engineers. They come early. They clean the floor. They put the old mat, a simple mat. Now we have better mat. They put by line, they put the mat. So before 9 o'clock or 9:30, people come. Before they come, these engineers, they clean the room with the broom. And they did all that work. They did faithfully to God. Nobody appreciated, nobody saw it. But later on, they became presidents and secretaries, big leaders of that denomination. Now they spread it to America, Gulf, all over in Kerala, all over in India, that denomination. और अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये सारे जितने भी इंजीनियर्स थे, वो लोग कलीसिया में जल्दी आते थे और वहां पर कलीसिया की साफ सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, और वो लोग चारपाई को बिछाते थे। पुराने जो चारपाई होते, जो एकदम साधारण होते, उन चारपाइयों को बिछाकर वो लोग वहां पर प्रभु की सेवा करते थे। और वहां पर वो लोग ने विश्वास योग्यता के साथ जब कार्य को किया, किसी लोगों ने उनको नहीं देखा, पर जो परमेश्वर है, परमेश्वर ने उनके कार्य को देखा, उनकी विश्वास योग्यता को देखा। इस वजह से आज वो लोग उस बड़े बड़े संस्था के बहुत बड़े बड़े जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं। और प्रभु ने उनको इतना आदर किया कि आज वो सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में हर जगह वो लोग फैले हुए हैं। And their children are all blessed, and they live in various parts of the world. और उनके जो बच्चे हैं, वो लोग बहुत ही आशीषित हो गए हैं, और आज वो दुनिया के हर कोने कोने में वो लोग अलग अलग जगह में रहते हैं। So those who are listening, people of Rajasthan, India, Lucknow, listen, whatever you do, God is watching. If you just a cleaning, picking a garbage in the church, or doing a painting work for the church, or making a meal for the pastor and family, or buying a gift for the family, God knows everything. At the appropriate time, He will reward you. मेरे सुनने वाले प्रियो, राजस्थान के लोगों, लखनऊ के लोगों, दुनिया के भारत के अलग अलग जगह से सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कलीसिया के अंदर कचरों को उठाते होंगे, कलीसिया के अंदर साफ सफाई करते होंगे, आप दूसरों के लिए खाना बनाते होंगे। शायद आप लोग को कोई देख नहीं रहा होगा, पर जो हमारा परमेश्वर है वो आपको देख रहा है, और वो अपने निर्धारित समय पर प्रभु आपके जीवन में वो आपको प्रतिष्ठित करेगा। I've been studying one class to teach. I have to spend 4 or 5 hours and praying and meditating, make the PowerPoint. Only Sini says, and I know all of you love me, but I never received a WhatsApp message, and nobody sent me a thank you, and nobody sent me a card. I'm not saying I need it, but I'm saying
These are things we can do. Find the number, send a, write a word in Hindi or thank you. Words are important. I know you thank you me. I know it. But, and Zini always say thank you. And to prepare one message, it takes 5, 6, 7 hours. A lot of prayer, a lot of thinking. And you can, what I'm saying, you have to do. God will honor you and bless you for that. और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे एक क्लास आप लोग को जब मैं सिखाता हूँ यहाँ पर, तो मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। मैं मनन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तब जाकर एक क्लास आप लोग के सामने में ले पाता हूँ। आप में से कई लोगों ने मुझे कभी भी धन्यवाद तो नहीं कहा, पर मेरा जो नंबर है आप लोग के पास, आप ले लीजिएगा। और मुझे हो सकता है कि आप हिंदी में भी हो सकता है कि मुझे एक धन्यवाद का एक छोटा सा एक वचन कहिएगा कि आपने आज मुझे सिखाया, वो काफी अच्छा था। और कई बार लोग हम जो कार्य करते हैं वो हमें लोग देखते नहीं है, पर हमारा जो परमेश्वर है वो देखता है, वो हमें आदर करता है। The school children, you can do this. Have a habit, and you can buy a card, thank you card, draw a picture, give it to your school teacher, those who teach, your Sunday school teacher, your principal, and they will be happy because you think maybe that day is they are discouraged, they are down, maybe a problem with his wife or children or some issue. But when you give that card, you will make a difference in his life. You will be blessed. So be a good people of gratitude. तो मैं आप लोगों से, जितने भी विद्यार्थी है, विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक धन्यवाद का एक कार्ड बनाकर अपने शिक्षकों को दे, क्योंकि हो सकता है कि वो उनके जीवन में किसी परेशानियों को लेकर घूम रहे होंगे, शायद परिवार की समस्या, आर्थिक समस्या, किसी भी वो बुरी तरीके अपने जीवन में मानसिक रूप से परेशान होंगे। तो जब आप अपना एक थैंक यू का कार्ड जब आप अपने शिक्षक को देंगे, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन की बात होगी, उनके जीवन में एक अच्छी बात होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमेशा हटकर काम कीजिएगा, एकदम अलग कार्य कीजिएगा, जिससे लोग आपको देखकर कहे कि हाँ, ये आशीषित व्यक्ति है, इसने अलग कुछ किया है। We come from a Hindu culture. We don't say thank you. We don't say thank you. We don't say sorry. We don't have that culture. And so we need to change. We need to have a biblical culture. We need to have a Bible character. मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक हिंदू जो संस्कृति से आए हुए लोग हैं, तो हमारे संस्कृति में, संस्कार में ये नहीं है कि दूसरों को थैंक यू कहे, दूसरों को धन्यवाद दे, दूसरों को सॉरी बोले। पर अब हमें यहाँ पर बदलना होगा। अब हमें बाइबल का जो संस्कार है वो उसे अपनाना होगा। हमें दूसरों को थैंक यू बोलना होगा, दूसरों को धन्यवाद कहना होगा। हमें अपने जीवन में बाइबल का जो चरित्र है वो अपनाना है। In our homes, how many times we say thank you in our homes? हम में से कितने लोग हमारे घर के अंदर जब हम रहते हैं तो हम एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं। When mommy brings an excellent lunch or dinner, we should say, "Mommy, thank you. This is a very, very delicious food." Mommy spent 2-3 hours for cooking, but we must say thank you. हमें से घर के अंदर कितने लोग अपने मम्मी को धन्यवाद देते हैं, जब आपके लिए मम्मी 2-3 घंटे किचन में रहकर खाना बनाते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, तो कितने लोग हैं जो अपने मम्मी को धन्यवाद कहते हैं हर दिन। And you know, children, to mommy to make food, to bring lunch or dinner, take 2 hours, minimum 2 hours. She is in the kitchen, but your word from the daughter and son, mommy will be encouraged. Mommy, thank you, love you, mommy, thank you for doing. It encourages her. That's what she expects. और आप सब जानते हैं कि मम्मी 2-3 घंटे किचन में रहकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर एक लंच या फिर एक डिनर तैयार होता है। तो जब आप अपनी मम्मी को धन्यवाद कहेंगे या फिर आप अपनी मम्मी को कहेंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो वो उम्मीद करती है अपने जीवन में कि बच्चे हमारे इस तरह से कहे, ताकि वो अपने जीवन में प्रोत्साहित हो। Okay, very good. And so let's come back, and I want you to look at Jeremiah 17:10, and everybody memorize it. 17:10. और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि यिर्मयाह की जो किताब है उसका 17वां अध्याय उसका 10वां वचन देखिएगा। यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय उसका 10वां वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा है 10वें वचन में, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन
को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। Read again one more time. There's a lot of beautiful words there. The Lord to the heart, He examines the mind, heart to mind. For what? To reward each person according to their behavior, conduct, according to their deeds deserve. God is searching a man or a woman, his heart and mind, so that He can reward on the basis of what he does or she does. वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उन स्त्रियों को, उन पुरुषों को चुन रहा है जिनके मन को वो जांचना, जिनके मन को वो खोजना चाहता है, जिनके हृदय को वो जांचना चाहता है, ताकि उनके कार्यों के अनुसार, उनके चाल चलन के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार प्रभु उनको फल दे। Anushka, please read that verse in English or Hindi. Please read. Anushka, please read in English or Hindi that verse 17:10. Unmute. Yes, sir. What's the list chapter, sir? Jeremiah verse 17:10. Take it, underline 17:10. मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। One more time. एक बार। Okay. मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। And memorize. God is searching. God is examining. You see that first part is searching your heart. He's searching your mind. For what purpose? To reward each person. He rewards each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Please underline, memorize this. God is faithful. मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वचन जो 10 है उसको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा, इसको अपने मन में आप उतार लीजिएगा इस वचन को। और वचन में लिखा है कि यहोवा क्या है? यहोवा मन को खोजता है, हृदय को जांचता है, ताकि उनके प्रत्येक जन को क्या करे? अपने चाल चलन के अनुसार उनको फल दे। इस वचन को आप रेखांकित कीजिएगा, इस वचन को आप है ना अंडरलाइन कीजिएगा। Hallelujah. Hallelujah. So God is hovering and looking over each and every one of us. So do not be tired of doing the things God has set apart for you to do. He will reward it at the right time or in the right time. परमेश्वर ऊपर से देखता है, सबको देखता है, सबको ढूंढ रहा है और वो जांच रहा है। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो काम रखे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए जिस कारण आपको आपके जीवन में बुलाहट दी है, वो बुलाहट को आप विश्वास योग्यता के साथ उसको पूरा कीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने कार्य के अनुसार आपको फल दे। One more, 1 Corinthians. एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी उसका 3रा अध्याय 12. उसका 12वां वचन। 3:12. पहला कोरिन्थी 3रा अध्याय उसका 12वां वचन। We will read 3 onwards, 3:13. We will read up to 15. उसका हम पढ़ेंगे 12 से लेके 13, 14 और 15 तक। Please read, Pastor Nigel. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, let's read 10 onwards. 10 onwards. ओके, हम 10वें वचन से पढ़ेंगे, 10वें वचन से पढ़ेंगे हम। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते।
Amen. So many things we can learn from there. And कई सारी बात Paul says he is a wise builder. He is not wasting his time. He is giving the best 100%, like a runner and 100 feet runner is giving the best for God's work. और यहाँ पर पौलुस है जो हमें बहुत सारी बातों को सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर वो पौलुस कहता है कि वो एक बुद्धिमान राजमिस्त्री है, वो अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा है, वो एक दौड़ लगाने वाला एक व्यक्ति के समान है जो पूरी अपनी ताकत लगाता है, वो 100% उस काम को वो पूरा करता है। Then he said, each one should build with care. We must build with care, absolute care and love and humility. और यहाँ पर लिखा है कि हम जब बनाते हैं तो जो बनाते हैं उसको चौकस रहकर हमें बनाना है और नम्रता के साथ हमें उस चीज को बनाना है। Our foundation is Jesus Christ, verse 11. No one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ is our foundation. On with this foundation we build it. और वचन 11 में लिख रखा है कि क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। Look at verse 12. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. If we are lazy, if we are cheap, if we are lazy and cheap, it will be brought into light. That point Paul is making, we must be sincere and genuine and faithful, 100% loyal in our work for God. और वचन 12 में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो उनके काम को एक दिन परमेश्वर प्रकट करेगा। अगर हम आलस रहेंगे या हम अपने काम में कुछ गलत कार्य को करेंगे तो परमेश्वर उसको अपने कार्य के अनुसार वो प्रकट करेगा और उससे अपने कार्यों के अनुसार प्रभु उसको फल देगा। It will be revealed with the fire, and the fire will test the quality of each person's work. The fire will test the quality. So what kind of work, what kind of things you do for the Lord's work? Are you lazy? Do you attend the church? When you are attend the church, you give it full attention for the worship and preaching of the lesson. When the pastor preaches, do you write down? Do you make a note? Do you underline? Or do you help people? You give it offering? Do you prepare the week? Lord, this week, how much I should give for the Lord's work? Do you prepare yours, Lord? When you come to the church, you take some money, 10 rupees, put in the offering tray. So do you prepare yourself? What kind of quality work you do? और यहाँ पर लिखा है कि जो भी आप कार्य करते हैं वो कार्य जो है परमेश्वर आग के द्वारा उसको प्रकट करेगा। तो जब आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि आप कलीसिया में जाते हैं तो कलीसिया में जाने के बाद आप जो कार्य करते हैं वहां पर आपके कार्यों में कितने गुण हैं और जो आप 100% दे रहे हैं या 60% दे रहे हैं, कितना कार्य में आप कितनी सिंसियरिटी को दिखा रहे हैं, वहां पर परमेश्वर देखता है और वो परमेश्वर आग के द्वारा उसको प्रकट करेगा। चाहे वो आराधना में हो, आप प्रचार को किस प्रकार से सुनते हो, पूरे ध्यान से सुनते हो, उसको लिखते हो, जो प्रचारक जो कहता है उसको पूरे आप लिखते हो, डायरी में उतारते हो, या फिर आप जब परमेश्वर को दान देते हो तो किस प्रकार से दान देते हो। ये जो सारे कार्य है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, इस कार्य को जब वो परमेश्वर देख रहा है, क्या देखता है, और वो चाहता है कि आप 100% कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो जो कार्य आप कर रहे हैं वो परमेश्वर एक दिन आग के द्वारा उसको प्रकट करेगा। And after this, and be ready to worship. Daniel, whoever led the worship, please be ready to sing a powerful song. Then we all raise hands and we will recommit our lives. We will pray. Okay, all of us will commit our lives to be sincere and serve God. इस प्रचार के बाद मैं डैनियल भाई से विनती करूंगा कि वो आराधना में अगुवाई करेंगे और हम गाने को गाएंगे। उसके बाद हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। Verse 14, what has been built survives, the builder will receive a reward. Underline verse 14, the builder will receive a reward. God is looking to give a reward to those who are faithful in his service. और वचन 14 में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। इस वचन को आप रेखांकित कीजिएगा, इसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिएगा। और परमेश्वर की जो कार्य है, जो विश्वास योग्यता के साथ करता है, प्रभु उनका आदर करता है, प्रभु उनको प्रतिष्ठित करेगा। If it is verse 15, if it is burned up, the builder will suffer a loss, but yet it will be saved, even though only as one escaping through the flames.
यदि किसी का वचन 15 में लिखा है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। So friends, don't look at the applause of people, but you try to please God. It is not important to just to keep doing. You have to do it with your whole heart as well. Put your heart into what you do and the result. और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय लोगों, आप लोगों को, मनुष्य को आप खुश करने के लिए काम ना करें, आप परमेश्वर को खुश करने के लिए आप कार्य करें। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप अपना 100% देकर परमेश्वर का आप आदर करें, परमेश्वर को आप दिल से उस परमेश्वर की आप सेवा करें। Let's close the last point. और मैं इसके बाद समाप्त करना चाहूंगा आखिरी बिंदु को हम पढ़ने के बाद। Enemies are ashamed before the righteous. Our enemy will be ashamed before us. Verse 12 to 14. हमारे जो शत्रु है धर्मी लोगों के सामने वो लज्जित हो जाएंगे। 12 to 14, Esther. और वो जो है वचन 6वां अध्याय उसका 12 से 14 में लिखा है। Please read. I will read. Afterward, Mordecai returned to the king's gate, but Haman rushed home with his head covered in grief. You see, he's ashamed, and told Zeresh, his wife, and all his friends everything that had happened. और वचन 12 में इस प्रकार से लिखा है, तब मोर्देका तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। वचन 13 में लिखा है, हामान ने अपनी पत्नी जरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। And his advisors and his wife, they are not encouraging. So listen, before they encouraged him, now discouraging him. His advisors and wife Zeresh said to him, since Mordecai, before whom your downfall has started, is of Jewish origin, you cannot stand against him. Amen. Underline. Now that is not an encouraging. So when you fail, everybody put you down. Nobody's encouraging his wife. You cannot stand against him. You will surely come to your ruin. Haman, you are going to be ruined. You are going to be destroyed. That is the word from the mouth of his wife and advisors. यहाँ पर हम देखते हैं हामान के साथ जितने भी उसके सलाहकार थे वो उससे पहले सकारात्मक सलाह देते थे, पर यहाँ पर जब वो यहाँ पर हार गया, यहाँ पर जब वो अपने जीवन में नाश होने जा रहा है तो सब लोग उसे छोड़ देते हैं और उसे गलत और उसे कोई भी यहाँ पर सलाह नहीं देता। उसकी पत्नी भी ये कहती है कि मोर्देकाई, वचन 13 में आगे हम पढ़ते हैं, मोर्देकाई जिसे तूने नीचा दिखाना चाहता था, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। While they were still talking with Haman, his wife, the king, and hurried him. They came and catched him, took him to the banquet that Esther prepared. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो हामान अपने लोगों से बात कर ही रहा था, तब वो वहां पर वो लोग आते हैं और उसको उठाकर वहां से लेके चले जाते हैं और जो एस्तेर ने भोज तैयार किया था वहां के और उनको लेकर जाते हैं। Now, what is my conclusion here? Your reward comes from the Lord. मेरा जो आज का जो संदेश का समापन ये है कि हमारा जो प्रतिष्ठा है वो परमेश्वर की ओर से आता है। 1 Corinthians 3:8, the one who plants, please take it, 1 Corinthians 3:8, the one who plants and the one who waters serve one purpose. They will each be rewarded according to their own labor. वचन 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 8वां वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। The one who plants and the one who waters. You need to take the Bible, underline everybody, please. आप वचन 8 जो है उसको आप रेखांकित कीजिएगा। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 8वां वचन, उसको रेखांकित कीजिएगा। Read again, my brother. और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। Amen, amen, amen. Our reward comes from the Lord. हमारा जो प्रतिष्ठा है वो परमेश्वर की ओर से आता है।
I will close with my story and my wife's story, maybe a little bit. मैं अपने जो जो अपने प्रचार है मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा मेरी कहानी और मेरी पत्नी की कहानी के साथ. Again, you know my story. आप सब लोग मेरी कहानी को जानते हैं. When I was kicked out of the home, I have no money. जब मैं घर से निकाला गया था तब मेरे हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं था. When I was kicked out of the home, I had no money. जब मैं घर से निकाला गया था तब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था. No money for food, no money for a place to sleep. मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि मैं खाना खा सकूं और कहीं पे अपना सर को जो मैं है टिका सकूं. So I began giving tuition for high school children. तो मैं हाई स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था. I had to walk miles, kilometers to go to that house and give a tutorial. Tuition. और मैं काफी किलोमीटर चलता था और उनके घर में जाकर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था. I gave it the best. मैंने अपना उत्तम जो है मैंने उनको दिया. I did for the Lord. और मैंने परमेश्वर के लिए किया. That boy was blessed, his sister was blessed, the family was blessed. He got a top mark in the school. He went to foreign countries, he worked and got honored. और वो जिस लड़के को मैंने पढ़ाया वो स्कूल में उसने टॉप नंबर से हासिल किया. टॉप मार्क्स उसके क्लास में आया. वो स्कूल में उसने हासिल किया. उसके द्वारा उनके परिवार वाले आशीषित हुए. उनके घर वाले सब लोग आशीषित हुए और वो लोग आज विदेश में रहकर वो लोग बहुत ही आशीषित हैं. But that boy, that experience taught me I have a gift of teaching. Otherwise I would know. From that crisis I understood. God revealed me I have a calling, gift of teaching. मेरे कमी घटी में मैं ये अनुभव किया और मैं जान पाया कि मेरे अंदर परमेश्वर ने सिखाने के लिए एक गुण दिया है. यानी कि एक शिक्षक का एक गुण दिया है. That is why when I went to Trivandrum, I started my own business school, taught pre-degree students, BCom students, MCom students. I taught in Trivandrum from that experience. और मैंने ट्रिवेंड्रम में रहकर ये अनुभव किया कि और मैंने ये देखा कि मेरे अंदर एक शिक्षक का एक गुण है. मैंने वहां पर रहकर MCom के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को और वहां पे प्री डिग्री के बच्चों को मैंने वहां पर पढ़ाया. I taught because it was a tutorial center, private school, 6:30 to up to 10:30 evening. I taught. So many students coming for a tuition. और वहां पर ट्यूशन जो प्राइवेट चलता था इसलिए 6:30 से शाम के रात के 10 बजे तक मैं बहुत सारे बच्चों को वहां पर आते थे. उन सभी को मैं पढ़ाता था. And then God had told me, this is not my plan for you. I have something better plan for you. और वहां पर परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरी योजना ये नहीं है तेरे जीवन में. मैंने आपके लिए और इससे और उत्तम चीजें आगे रखी है. I did not know I will come to America, I will go to great seminary, then go back to India and start seminary and Bible college all over India. I did not know that. मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं विदेश में अमेरिका में जाकर वहां पर बाइबल कॉलेज की पढ़ाई करूंगा और वापस भारत में आकर एक बाइबल कॉलेज को खोलूंगा. Not one major seminary, then many Bible college, every state. और मैंने कभी पहले तो एक बाइबल कॉलेज को मैंने खोला और उसके बाद परमेश्वर ने धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे बाइबल कॉलेज को खोलने में मदद की. Seminary and Bible college is different. Seminary. एक सेमिनारी को खोलने में प्रभु ने मदद किया. Then Bible colleges. और उसके बाद एक बाइबल कॉलेज को खोलने में मदद किया. So God is watching all of our labor and He will raise up. He will raise up at the right time. परमेश्वर हमारे कार्य को देखता है. हम जो काम करते हैं उस कार्य को परमेश्वर देखता है और वो अपने निर्धारित समय पर वो हमें फल देगा, हमें प्रतिष्ठित करेगा. My wife is a humble. When she came to America when she was 12 years old. मेरी जो पत्नी है वो काफी नम्र है और वो जब 12 साल के थे तब वो अमेरिका में आए. She loved God. परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे. And she will go to pastor's house, help them. When he was a young girl, washing the kitchen utensil, washing their clothes. See this girl, and because she loved God. और वो काफी अच्छी बहुत ही नम्र है क्योंकि वो पासवानों के घर में जाकर वहां के जो बर्तन है वो धोते थे, उनके जो कपड़े होते थे धोते थे क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे. Today, and she married a pastor.
and a leader, and now she's a mother of thousands of children, people in India, because her obedience, her sincere life. And in this house, we have no workers, no laborers. Moni is the servant, Moni is the worker here. She's always cooking for pastors, visitors. Every day she's cooking here. और आप सब लोग जानते हैं उनके जो कार्य है, उनके दिल के बातों को परमेश्वर ने देखा और वो काफी आज्ञाकारी रहे। इस वजह से आज वो काफी हमारे देश में, भारत के देश में कई जो जवान हैं उनकी माँ बनकर परमेश्वर ने उनका आदर किया है। और आज भी हमारे घर में कोई नौकर या चाकर नहीं है। आज भी मेरी जो पत्नी है वही खाना बनाती है। हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, पास्टर्स आते हैं, प्रभु के सेवक लोग आते हैं, उन सब के लिए खाना मेरी जो पत्नी बनाती है। We have no helpers. She takes her car and goes to the shop and do all the shopping. Then she 2-3 hours cutting the chicken, cutting the vegetables. She does all this, then make a beautiful table for all these pastors, missionaries, my friends who come to Chicago. और मेरे पत्नी के साथ कोई सेवक नहीं है, कोई नौकर नहीं है कि वो उनकी मदद कर सके। वो स्वयं सब कुछ करते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, सारा सामान लेकर आते हैं, सारा जो भी खाना बनाना होता है, सब्जी काटना होता है, वो सब कुछ वो स्वयं करते हैं और एक खूबसूरत सा एक मेज को तैयार करते हैं। जो भी लोग आते हैं उन सब के लिए अच्छा खाना तैयार करते हैं। No complaint. She does all this. वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, वो सब कुछ बिना कंप्लेन के करते हैं। That is why our daughter watched all this. My daughter has a good job, school teaching job. She is a STEM teacher, science, technology, engineering, mathematics. But she left her job. She said, Daddy, God called me. She left her a good job, insurance, good salary. Now she's living in a poor community in Chicago. She wanted to serve the poor. So she saw, our only one child, daughter saw, she's 28. She saw our mom and dad doing it. So she obeyed God. Now she has no fixed salary. She is doing tuition. She's writing her books. And also she's living in a difficult place. South side of Chicago, shooting and all kind of people. And she lives there to love them and bless them. And she is very strong. और जो ये सब देखकर मेरी बेटी पली बड़ी है और उसने वो एक अच्छे स्कूल की अच्छी सी टीचर है, वो अच्छे सिखाते हैं, उस साइंस सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, सारा जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कुछ भी सब्जेक्ट है वो सारे विषयों को वो सिखाते हैं। पर परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर के प्रेम को देकर वो जो नौकरी है उसको छोड़ दिया और परमेश्वर ने जो बुलाहट उनके जीवन में दिया, वो बुलाहट को सुनकर वो आज साउथ, जो शिकागो के साउथ जो दक्षिणी भाग है, वहां पर रहकर प्रभु की सेवा कर रही है। ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहां पर लोग बहुत गरीब है, उस गरीब लोगों के बीच में रहकर सेवा करते हैं। और वो काफी खतरा वाला एक जगह है जहां पर हमेशा लोग बंदूक लेकर चलते हैं, घूमते हैं, और उनके बीच में रहकर मेरी बेटी है जो प्रभु की सेवा कर रही है, उनसे प्रेम करते हैं, उनको आशीष देते हैं, आशीषों के वचनों को बोलते हैं। इस प्रकार से मेरी जो बेटी है सेवा कर रही है। ना तो उनके पास कोई फिक्स सैलरी है, ना तो उनके पास कोई इंश्योरेंस है, पर वो इन सब के बिना वहां पर रहकर परमेश्वर से प्रेम कर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। And God is a good God. He is watching everything you do, my friends, fathers and mothers. What you do sincerely, 100% to the Lord. He is watching. He will raise you up at the particular moment. Don't wait for now, at the appropriate time, like God raised Mordecai in front of the enemy Haman. God will raise you up and bless you. मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप, हमारा परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। जो आप कार्य करते हैं, आप उस कार्य को 100% रीति में उसको कीजिएगा, उसमें बिल्कुल भी आप रुके नहीं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है अपने निर्धारित समय पर है, अभी नहीं, अपने निर्धारित समय पर, वो कब है हमें पता नहीं है, पर वो अपने निर्धारित समय पर उसको पूरा करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मोर्देकाई के जीवन में परमेश्वर ने उसका आदर किया, एक निर्धारित समय पर उसके जीवन में परमेश्वर ने आदर रख रखा था, उस निर्धारित समय पर आपके जीवन में भी प्रभु कार्य को करेगा। So, in conclusion, be faithful in God's service. और मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रभु की सेवा में हमेशा विश्वास योग्य रहे। Don't do to please anybody. Don't do anything to please others. मनुष्य को खुश करने के लिए कोई काम ना करें आप। You please God. हमेशा परमेश्वर को खुश करें, उसको प्रसन्न करें। I'm going to stop here. Everybody close your eyes and worship. Daniel, be ready. Don't look around it. In your home, everybody close. Surrender your life. Yes, Lord. Yes, Lord. You say, yes, Lord.
Yes, I surrender my life. Yes, I want to be sincere. I want 100% surrender my life to you. Everybody, raise your hands and sing along with the worship, okay? And then over to Sini. And Sini, you can ask somebody to pray, and maybe Nigel can give the benediction or Berj, anybody, okay? I'm handing over to Sini. Daniel, lead the worship. Everybody close your eyes and raise hands towards heaven. और मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अपने आंखों को बंद करें, आपका ध्यान अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। कुछ गानों को गाकर हम प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे और परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित करेंगे। परमेश्वर जो काम हमारे जीवन में उसने दिया है उसको समर्पण के साथ उस परमेश्वर की हम सेवा करेंगे। हम गाना गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हमारे हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आज हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पित कर परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं जो भी करूंगा, जो भी तेरे लिए, जो तूने मेरे जीवन में बुलाहट रखी है, जो सेवा आपने मेरे जीवन में दे रखा है प्रभु, उसको मैं 100% अपने जीवन में उसको मैं पूरी करना चाहता हूँ। तो हमारे जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए खुदा, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद खुदा। प्रभु पिछले एक सप्ताह प्रभु जी तेरे दास के द्वारा हमने परमेश्वर के वचन को सुना खुदा। यस्तेर के किताब के अलग अलग आयामों को, अलग अलग गहराइयों को हमको जानने पाए खुदा। प्रभु वी आर जस्ट वांट टू से थैंक यू टू यू लॉर्ड। प्रभु तेरे दास के लिए धन्यवाद प्रभु, रेवलेशनों के लिए धन्यवाद, उन प्रकाशनों के लिए धन्यवाद, उन मेहनत के लिए धन्यवाद जो तेरे दास ने इन दिनों में किया है और उससे उस नोट्स को तैयार करने के लिए किया है खुदा परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते तेरे दास के लिए खुदा, उस मेहनत के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। इस समय हम तेरे दास के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, मुनि मैम के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, मेरियान के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु हम पूरे कलीसिया एक साथ मिलकर मेरियान के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु उसको एक उचित योग्य एक वर्क खुदा परमेश्वर, ताकि इन दिनों में प्रभु जी अपनी जिंदगी को सेटल कर सके खुदा। हम एक अद्भुत गवाहियों को सर के उसे सुना खुदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विशेष रूप से जितने लोगों ने प्रभु इन क्लासों को अटेंड किया है खुदा, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर प्रकट होने पाए खुदा। नारो शबला रखन दलाम बरोड़ी बिरा बराबा लथे रखा लगना शौड़ी ले बेरे बेरे लथे रिखा लगना शौड़ी ले बिरा बराबा। प्रभु जी हम थैंक यू जीसस। एक बार फिर से सबके ऊपर धन्यवाद खुदा। आज रात के लिए धन्यवाद, कल संडे खुदा तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने के लिए हम सबको मदद कर, सहायता कर, पूरी तरह से तेरे पर भरोसा करते हुए एक बार फिर से सर के लिए, सर के मेहनत के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को तेरे नाम से मांगते हैं। सुन और गण कर पिता, आमीन।